उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा. So in that case, we provide such type of recording also, but in regular way it's not possible. क्योंकि आप आज आप रिकॉर्डिंग मान रहे हो, कल दूसरे मांगेंगे, फिर तीसरे मांगेंगे, तो मालूम चलो फिर हर दिन रिकॉर्डिंग करना है. So it's not you can say we cannot share the recording. That's a problem. I can understand, but I'm an employee of a company, so I have to follow the rules, right? रिकॉर्डिंग देने में मेरे को क्या है, तो मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, है ना. यूट्यूब पे से तो पढ़ ही सकते हो. यस सर. ये हो सकता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको यूट्यूब पे डाल दो, राइट. तो चलो नेक्स्ट क्लास से मैं यही करूंगा, आपको यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना, मुझे याद दिलाना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है. ओके सर. And don't write in comment network issues because it's a problem on center. So head office will ask why the network issues is arising here. If you are not able to listen my voice, try to check your network and sort it out. Okay, so now come on the topic. So here in multiple inheritance, in Python there is a problem. If you are using multiple inheritance, by default the child class is able to call a single parent. एक ही parent कॉल हो रहा है. अब इसमें तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये आपको शेयर कर देता हूँ ये वाला कोड, फिर मैं इसको मॉडिफाई करूंगा. या ऐसा करते हैं, पहले इनिट को भी हटा लेते हैं, और सिर्फ ये वाला कोड शेयर करते हैं. So we are having two parents, and here in C class just we are calling the functionality of A and B. तो पहला एग्जाम्पल ये बन गया. दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि in Python by default one parent class is called, right? तो चलो मैं रिकॉर्डिंग ऑन ही कर देता हूँ. So when we are working on multiple inheritance, we are having two parents A and B, both are having method like getInfo and setInfo. Here we are creating a child, and child is inheriting information from two parents, parent A and parent B. So inside child class there is no information, but object of this C are able to access the information like getInfo and setInfo. That is a part of parent class. So that's the example of multiple inheritance, because here we are using two parents that access the information and functionality. Child can able to access the information and functionality of A and B class. But if we are using multiple inheritance, there is some problem. Let's discuss the problem. What's the problem which we are facing in multiple inheritance? When we are creating an object of this C class, so which
parent is active, that we have to check, or both parent is active. When we are creating an object of C class, so is there automatically the object of A and B class is also created? That we have to check, right? So how we can check? How we can check? Let's see. Just a minute. So now I want to check when I am creating an object of this C class, so which parent class is active, which parent class is initialized. Just I want to check. So how we can check? So for this we can create init method. Init method. So when init method is called, whenever object is created, init method is automatically called, right? So print A class init method, right? And here in B class also, we can define init method just to check which init method is called. Print B class init method called. Let's see what happens in this case. When we are creating an object of C, what happens in this case? When I run this code, when I run this code, what happens in this case? Let's see. A class init method is called. A class getInfo method is also called. B class setInfo method is also called. But B class init method is not called. Right? It means what? When we are creating an object of C, by default, A class is initialized. So only we are able to access the information and we are able to access the data from A class. Let's see. Suppose inside this init, we are having a data called message, suppose. So inside A class, we are having a data called message, right? And here, I am writing self.message is equal to message. So here I am writing like this. I want to call this init method
Here we are having some information like message. I want to use this message. I want to use this message inside this C class. So here we are able to access the functionality of A class, like get info is the functionality of A class. We are able to access. Are we able to access this message also? Let's check. Like print obj dot. If I'll write message, no, I'm not able to access the message. Let's see. When I run this code, what happens in this case? Now we are not able to call this init method. Init method कॉल नहीं हो रहा, पहले कॉल हो रहा था. By default, A is initialized, but when we are writing here a parameter MSG, now we are not able to initialize this parent. Let's see what happens in this case. आप A क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और C क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो. क्या C क्लास में कोई पैरामीटर है, कोई इनिट मेथड है? नहीं है. A क्लास में इनिट मेथड है. तो अगर इनिट मेथड में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इफ यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, इट्स ब्लैंक, तब तो ये बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाएगा. देखो इसको रन करते हैं. बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा है और ये काम भी कर रहा है. ये एरर यहाँ पे दे रहा होगा. इट्स वर्किंग. init method is called. But when we are adding some parameters, we are not able to call this A method. A class, because A class init method need a parameter called message. इसको message चाहिए कॉल होने के लिए, लेकिन C class कोई मैसेज पास नहीं कर रहा है यहाँ से. Now the program is throwing error. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. तो आपको अभी देखो मैं सिर्फ प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन पे बाद में आएंगे. पहला प्रॉब्लम ये है कि in the case of multiple inheritance, only we are able to initialize a single parent. दूसरा प्रॉब्लम ये है, if a single parent is having parameterized init method and child don't have any parameterized init method, so we are not able to initialize our parent. तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम. तो दो प्रॉब्लम अभी आपको दिखाया. तीसरा एक और प्रॉब्लम. तो हम लोग एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. पहले मैं आपको प्रॉब्लम सारा दिखा रहा हूँ कि क्या आ रहा है. इसको अभी मैं हटा देता हूँ. अब तीसरा प्रॉब्लम क्या आएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस में, लेट्स सी. What's the third problem? Suppose A class is having a method getInfo and B class is also having a method getInfo. Now both class is having the same method, right? Both class is having the same method. So when I'll call obj.getInfo, what happens in this case? Because there is some ambiguity. A class के पास भी get info है, B class के पास भी get info है. So in C++, if you will write like this, obj.getInfo, the program will throw error. बोलेगा ambiguity generate हो रहा है. Program will throw error. Even in Java also program will throw error. जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस तो होता ही नहीं, वो जावा में नहीं होगा ऐसा. In C++ there is a problem, and to resolve this problem C++ use an operator called scope resolution operator. किसी ने पढ़ा होगा तो याद होगा.
But in Python, the concept is slightly different. Just see. When I run this code, we are able to access the getInfo method. एरर नहीं दे रहा है, लेकिन कौन सा getInfo कॉल हो रहा है? A क्लास, जो पेरेंट इनिशियलाइज हुआ उस पेरेंट का getInfo कॉल हो रहा है, राइट? Then what's the use of this B? अब सारा काम ये सही हो रहा है तो B का क्या मतलब है यार? तो ये सिंगल इनहेरिटेंस ही हो गया। अभी तक का कहानी तो यही है ना। B का तो कोई रोल आया ही नहीं यहाँ पे। So it's behaving like a single inheritance. तो पाइथन ये फीचर आपको दे रहा है कि by default if you are using multiple inheritance, so in that case also it's behave like a single inheritance, right? So how we can resolve this problem? बोलो ना सर इनको 15 10 12 बच्चे आए थे, अभी नहीं आए। सभी लोगों का ना ऑफलाइन आना कंपल्सरी है, सर ने बोल दिया है, ऑफिस से कॉल आया है। तो ये कहे थे ना कल, कौन सा प्रोग्राम था? ट्यूसडे एंड थर्सडे आप लोगों का ऑफलाइन सेशन है, तो प्लीज उस दिन आ जाया करो आप लोग, ठीक है? कोई बोल नहीं रहा है। ओके सर, आ जाएंगे। ओके जी, कम से कम एटलीस्ट 2 दिन नहीं आ पा रहे हो तो 1 दिन आ जाया करो, ताकि हम लोग आप लोगों को दिखा सके ना कि आप लोग आ रहे हो, ठीक है? प्लीज, ठीक है? ओके जी, ओके, So now the offline session is mandatory, right? Offline में आना पड़ेगा आपको। You have to join your offline session also. So I'll talk about this in after finishing the session. So, okay. So, what's the problem which we are facing in multiple inheritance? Now tell me. How many problems I have discussed here? Three problems. What's the problem? पहली प्रॉब्लम ये है कि सर जो क्लास चाइल्ड सी है वो एक टाइम पे एक ही पेरेंट को कॉल कर रहा है। ओके, और तो सबकी प्रॉब्लम ये है कि सेकंड प्रॉब्लम क्या है? सिंगल इनहेरिटेंस ही परफॉर्म हुआ एक टाइम पे, बट हम कर रहे हैं मल्टी लेवल, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है। If you are having same function in two parents, right? If you are having same functions in two parents, so that will create ambiguity. So by default, one class function will be called. So by default, we are not able to access the functionality of two classes or more than two classes. That's also a problem. Now, how we can resolve such type of problem? अब next question ये है कि मुझे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, राइट?
पहला ये कि ए क्लास का सिर्फ इनिट मेथड कॉल हो रहा है, मीन्स ओनली ए क्लास इज इनिशियलाइज, बी क्लास इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, राइट? If we are having same method in A class and we are having same method in B class, if I'll call this method using the object of child class, so in that case only we are able to access the information of first parent, like A. We are not able to access the information from second class, like B. So how we can resolve this problem? So to resolve this problem now, I have to introduce one more concept. That concept is called super. Right? In Python there is a keyword called super with C. So what's the use of super keyword in Python? Let's see. सर ये दोनों पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज ला देता है सर। दोनों पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज लाता है। मे बी Okay. Let's see. In Python, super is used to call method from parent inside a child, right? तो अगर मुझे parent का कोई भी information child में चाहिए, तो we can use super keyword. Just see. Suppose if we are having a class animal and inside this we are having an attribute called name, and one more method is speak, right? Here is one more class dog that inherits the information and functionality of its parent. Here I am using init, but problem is what? Inside this init we are having two parameters, and inside this we are having one parameter, right? So by default animal वाला जो ऑब्जेक्ट है या जो इनिट मेथड है ये बाय डिफॉल्ट कॉल नहीं होगा, क्योंकि इसको कॉल होने के लिए क्या चाहिए? नेम. So when we will create an object of dog, or I'll pass this two information like name and breed, तो ये एनिमल को कॉल नहीं करेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एनिमल को कॉल होने के लिए क्या चाहिए? नेम. तो उस केस में मुझे ये वाला जो इनिट मेथड है या ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है इसको चाइल्ड क्लास में कॉल करवाना पड़ेगा, राइट? जैसे अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा था। प्रॉब्लम क्या था कि मान लो ये मेरा है ए क्लास और इसमें मैंने लिखा था मैसेज, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा था मैसेज, and here we are using self dot message is equal to message. तो अब क्या होगा? अब पेरेंट वाला इनिट मेथड कॉल नहीं होगा। अभी ये क्लास का इनिट मेथड कॉल हो रहा था, अब नहीं होगा। जस्ट सी एरर जनरेट हो जाएगा। लाइन नंबर 18 पे एरर आ रहा है जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, वी आर नॉट एबल टू कॉल पेरेंट क्लास इनिट मेथड। So how we can call parent class init method? अब इसको अगर कॉल करवाना है तो कैसे करवाएं? So inside this child class we'll define init, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? Just see. मान लो यहाँ मैं कुछ नहीं डालता हूँ, ये ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? कोई मैसेज, हेलो पेरेंट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे एक फंक्शन लगाया है। द नेम ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट? सुपर. व्हाई वी आर यूजिंग दिस सुपर कीवर्ड? एंड व्हेन वी आर यूजिंग सुपर डॉट इनिट, इट मींस व्हाट? मैं किसको पॉइंट कर रहा हूँ?
सुपर कीवर्ड पेरेंट को पॉइंट करता है, राइट? तो मैंने अगर सुपर कीवर्ड सी क्लास में लगाया तो ये किसको पॉइंट कर रहा है? सी क्लास के पेरेंट को। और बाय डिफॉल्ट सी क्लास का एक्टिव पेरेंट कौन है? ए। अभी हम लोगों ने देखा था सी क्लास का एक्टिव पेरेंट अभी कौन है? ए। सो व्हेन वी आर यूजिंग super डॉट init, इट मींस ये किसके init मेथड को कॉल कर रहा है? ए क्लास के init मेथड को कॉल कर रहा है। और इसको कॉल होने के लिए क्या पास करना है? मैसेज। तो मैंने यहां पे क्या पास कर दिया? मैसेज। तो अब when I'll create an object of C, so super function will call the init method of parent class. And the parent class init method कौन सा है यहाँ पे? कौन सा parent है अभी? एक्टिव पेरेंट कौन है? ए। तो ए वाला init method अब कॉल हो जाएगा। Let's see. देखो, तो सुपर कीवर्ड के थ्रू हम किसी भी पेरेंट क्लास के इंफॉर्मेशंस को चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला तो ये है, ये तो हुआ सिंगल इनहेरिटेंस में। अभी भी हमारा प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। सिंगल इनहेरिटेंस में इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते हैं। और अभी बाय डिफॉल्ट हमारा अप्लाई यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंगल इनहेरिटेंस। एक ही पेरेंट काम कर रहा है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है? एक तो समझ गए कि इफ ए क्लास इज हैविंग पैरामीटराइज्ड इनिट मेथड and C class don't have any parameters, so when I'll create an object of C class, तो वो A class को कॉल नहीं कर पाएगा, क्योंकि A class को कॉल होने के लिए क्या चाहिए? मैसेज। So in this case, we have to call this init method inside this child class, and to call the parent class init method, here we are using super keyword. Is it clear? Yes. Okay. Now the second question. Second question is what? Both class is having the same method, get info, and B class is also having get info. नहीं, पहले इस प्रॉब्लम के पहले कुछ और करो। अब दूसरा मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? ए क्लास का इनिट मेथड तो मैंने कॉल कर लिया। हाउ वी कैन कॉल बी क्लास इनिट मेथड? मैं यहां लिख रहा हूं सुपर, तो सुपर बाय डिफॉल्ट किसको पॉइंट कर रहा है? ए क्लास। बी को तो कर नहीं रहा। एंड इफ वी आर हैविंग मल्टीपल पेरेंट्स, सो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट? So in that case, here we can write like this: a dot super. No, super नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे a dot init. क्योंकि सुपर बाय डिफॉल्ट किसको पॉइंट कर रहा है? ए क्लास को, एक ही को पॉइंट करेगा ये। जब भी आप सुपर यूज करोगे किसी एक पेरेंट को पॉइंट करेगा, तो दूसरे पेरेंट को कैसे दिखाएंगे? सुपर के पास ये फीचर नहीं। दो बार नहीं ले सकते आप सुपर कीवर्ड किसी भी क्लास के अंदर। So how we can differentiate B? तो B को डिफरेंशिएट कैसे करें? अगर तो ऐसे नहीं करना है, बी को करना है तो ऐसे नहीं रहेगा। ये तो बाय डिफॉल्ट हो ही रहा है। ए को आपको कॉल नहीं करना है। सुपर लिखे यानी ए बाय डिफॉल्ट कॉल हो गया। So when I write b dot init, so what happens in this case? मैंने लिख दिया यहाँ b dot init।
Let's see what happens in this case. Selected तो नहीं, missing one required position. Okay, self नहीं लिखा ना. दोबारा रन करते हैं. Let's see. A क्लास init भी कॉल हो गया, B क्लास init भी कॉल हो गया, A क्लास getInfo भी कॉल हो गया. तो बाय डिफॉल्ट अभी अब दूसरा प्रॉब्लम भी समझ लेना होगा. अब देखो, सुपर लिखने का मतलब फर्स्ट पैरेंट. सुपर किसको पॉइंट कर रहा है? फर्स्ट पैरेंट. तो इन प्लेस ऑफ सुपर वी कैन राइट लाइक दिस. अगर आप सुपर नहीं लिखना चाहते, one required parameter. Oh, problem here. Self नहीं लिखा हुआ है. Let's see. So in this case also, A class init method is called, B class init method is called, A class getInfo method is called. So if you are having multiple parents, you can write like this. You can differentiate. तो सुपर कहाँ यूज करेंगे? ओनली इन द केस ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस. सुपर को आप एक ही पेरेंट के साथ यूज कर सकते हो, और एक पेरेंट कौन से इनहेरिटेंस में होता है? सिंगल इनहेरिटेंस. सो इन द केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस यू कैन राइट लाइक दिस. A class init, B class init. Now C class want to access A class getInfo and B class getInfo both. मान लो C class के पास भी getInfo है. C class is also having a method called getInfo. Def. And here also we are using getInfo. अब जब C क्लास का getInfo कॉल करेंगे तो A और B दोनों का getInfo चाहिए. So how we can differentiate? So we can write same logic. A dot getInfo and B dot getInfo. सर बाय डिफॉल्ट तो ए का getInfo तो अपने आप रिकॉल कर ही रहा है कोड में, तो बी को पॉइंट कर सकते हैं ना फिर से. चलो अब ये भी डाउट समझ लेते हैं. ये भी समझ लेते हैं. अब जब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ C क्लास के अंदर getInfo, तो अब ये getInfo किसका कॉल होगा? एक बाइट पर इसको मान रहा है, बाइट पर बी को मान सकता है? नहीं, कैसे मानेगा? बाय डिफॉल्ट बिहेवियर इसका क्या है? पेरेंट वो किसको मानता है? फर्स्ट वाले को मानता है. ए को मान रहा है. तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि ये getInfo जो है वो किसका है? बाय डिफॉल्ट तो ये वाला कॉल होगा. सो टू डिफरेंशिएट वी कैन राइट लाइक दिस. A का getInfo, B का getInfo. तो अब C का getInfo कॉल होगा तो वो किसको कॉल करेगा? A वाले को भी और B वाले को भी. And here we can write one more message like print C class getInfo. So कैसे काम करेगा ये? When I'll call obj.getInfo, तो सबसे पहले ये कॉल होगा, ये इसको कॉल करेगा और इसको कॉल करेगा, और फिर ये प्रिंट होगा. That's it. So let's see.
B class init method called, तो ये तो आया, ठीक है. और प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? लाइन नंबर 20. ओके, प्रॉब्लम वही है, सेल्फ मैं बार बार भूल जा रहा हूँ. Let's see. A class init method called, B class init method called, A class getInfo called, B class setInfo called, C class getInfo called. B वाला कहाँ गया? B वाला अपनी गेट वाले में. और सेट इन्फो लिख दिया है क्या? यस सर. ओके, मैसेज गलत लिखा हुआ है. जी. ये गेट इन्फो लिखना था ना. ठीक है, कॉल हो रहा है. This thing. A class init method is called, B class init method is called, A class getInfo called, B class getInfo called, C class getInfo called. So using such type of concept, we can resolve the problem. Is it clear to all of you? क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया हम लोग? प्रॉब्लम क्या क्या सॉल्व किए? पहला इनिट मेथड कंस्ट्रक्टर कॉल होने का प्रॉब्लम सॉल्व किए, राइट? सो if we are having multiple parents and I want to call all the constructor of all the parents, so in that case we have to differentiate which init method I want to call. So here we have to specify A class init method, this one is B class init method. So when we will create an object of C, so first it will call A class init method, then B class init method, then C class init method, right? If multiple parent is having same method with same name, with same parameters, so how we can differentiate? So inside C class getInfo, I want to call the method of A class getInfo and B class getInfo. So how we can differentiate? I can write A dot getInfo and B dot getInfo. So now we are able to call the constructor of parent like this, and we are able to call the functionality of parent. Is it clear to all of you? Others? Okay. So I have recorded this session and I'll upload this session on YouTube. I'll share the link. You can go there and recap the session. So I'm sharing this code in group. Now based on this example, you have to create a program. Based on this example, just create a program. तो मैंने सेव कर दिया है.
तो एक प्रोग्राम बना के आप लोग दिखाइए, और तब तक मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने रिकॉर्ड किया है इसको ग्रुप पे डाल देता हूँ।
अरे ऊपर बैक करेगा तो हम उसमें पाइप लगा के ऊपर दूँ उसमें डाल दूँगा ना आगे पूरा पूरे गिरेगा इधर आ जाए बैक मारेगा तो ऊपर से डाल दूँगा उसको पाइप पे काट के बराबर कर लड़ाई क्यों उसको मैंने बंद करने के बंद किया कि नहीं वो क्या बंद किया? अरे बिल जो था वो डाल काटा है कि बंद किया अभी तो का मैंने भी नहीं किया है, कल होगा। हाँ तो उसको बंद कर देना ऐसे थोड़ा लगा दी ठीक, सापट में गिरवा दे, सापट में गिरवाने का बना दे। सापट में क्यों गिराऊंगा तो कहाँ गिरेगा फिर पानी? अरे बैक में जब मारेगा तो उसको पानी चढ़ जाएगा ना आगे आगे वाला पाइप को काट दूँ उसमें पानी निकल जाएगा ठीक है। उसमें नुकसान हो जाएगा उसको बंद कर दूंगा तो बताना मिला कि उसको बंद कर देंगे उसको मैंने बोला अच्छा मेरे से ये बोला वो कि मैं दूसरे टाइम लग जाएगा उसके बाद ऊपर वाला राउंडिंग मार दूंगा तो ऊपर कहाँ मारेगा वो क्या मारेगा? ऊपर से घूमते जो दूर दिन नहीं खुला है प्लास्टर में जो नहीं हुआ है वो अभी तो है नहीं, अब कल ही देखेंगे, पहले तो हमें छत का करवाना है। हाँ तो मेरे से तो यही बोला था कि आज तो जो सामान है वो मैं हाँ तो नहीं आया ना, सुबह से ही मैं देखा, तभी तो मैंने कॉल किया कि वो क्या कहते हैं नहीं करने का कह रहा है, तो मैं समझ गया कि वो जा रहेगा। ये दूसरे का काम कर रहा है वो अब मुझे कोई बताया नहीं उसने, वो बस नहीं, बाइक मैंने बाइक फोन किया ना, बाइक लेके मैंने आया था, वो निकल गया था उसमें। हाँ मैंने फोन किया ना उसको हम्म। अभी उठाया हमें तो चला गया तो हाँ हम तो ये बोला कि मैं कर दूंगा सामान नहीं नहीं आ गया वो So I have uploaded videos. I'm sharing the link in chat. Right? I've shared the link in chat. I'll not share this link in group. I'm sharing this link in chat.
ये सब रास्ता बन गया आपका? ओके, स्क्रीन शेयर कीजिए, दिखाइए क्या बनाया। So you are creating a child manager and you are having two parents, person and the employee. Okay. So child class में क्या कर रहे हैं आप? init method के अंदर person का init method, employee का init method, ठीक है, और डिस्प्ले में कॉल कर रहे हैं दोनों डिस्प्ले। रन द कोड। यस, मैं अभी देख स्टूडेंट क्लास बनाया है और गेट इनको कॉल किया है, फिर कॉलेज बनाया है, कॉलेज नेम। ओके, यहाँ पे भी गेट इनको है, रिजल्ट इसमें इनिट को कॉल किया है और गेट इनको में स्टूडेंट और कॉलेज का गेट इनको कॉल किया। ठीक है, प्रिंट करो आप इसको। ठीक है, गुड।
डेली यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दिया करो, ओके? क्लास करने की जरूरत नहीं है, नहीं? क्लास करने का मन नहीं होगा तो फिर वीडियो तो है ही। ओके, क्लास भी लेंगे और वीडियो भी देखेंगे। वो वीडियो को समझने के लिए भी क्लास लेना पड़ेगा आपको। So now today I am going to assign you one more lab. तो मैं एक लैब असाइन करता हूँ आपको। So आज मैं आपको डिक्शनरी का लैब असाइन कर रहा हूँ। डिक्शनरी
सो मैंने लैब असाइन कर दिया है WPP पाइथन लैब 4। सी क्या आपको दिख रहा है लैब 4 LMS पे? So lab, it's related to dictionary. और प्रीवियस लैब सबमिशन भी बहुत ही कम है, सारे स्टूडेंट ने लैब सबमिट नहीं किया है। तो आपका टास्क बहुत ज्यादा होने वाला है। बहुत ही कम सबमिशन है लैब 3 का। लैब 2 का सबमिशन है 23, ओनली 23। इवन इन लैब 2 आल्सो सारे स्टूडेंट का सबमिशन नहीं आया है। ये कंप्लीट करना होगा आप लोग को, ड्रॉप आउट लिस्ट में आ जाएंगे। तो 4 लैब में अगर आपका 2 लैब कंप्लीट नहीं रहा तो ऐसे भी ड्रॉप आउट हो जाएंगे आप लोग।
ओके, सो और किसी ने बनाया? नो वन? लैब कहाँ पे शो होगी? सो आपको कोर पाइथन मॉड्यूल पे जाना है, WEPP कोर पाइथन। साइट होम पे जाओ, वहां पे सर्च करो WEPP कोर पाइथन। लैब सबमिशन किस किस का हुआ है? सागर आपका हुआ है, तो अब मैं पूरा नाम नहीं लूंगा। तो आप सवाल पूछो कि मेरा सबमिशन हुआ है या नहीं। आप सवाल पूछ रहे हो किस किस का हुआ है? किस आपको जानना है? सागर किस किस का लैब जानना है आपको? मेरा ही बता दो। आपका सबमिशन मैंने देखा है, 3 में आपका सबमिशन दिख रहा है। और लैब कितनी है? आज एक असाइन किया ना लैब। डिक्शनरी का लैब है, वो उसको कंप्लीट करो आप लोग। आपके LMS पे आई चैट कोई दिख रहा है? देखिए एक बार चेक कीजिए, आई चैट ऑप्शन आ रहा है क्या? WEPP आई चैट चेक करके मुझे बताओ। एक तो मुझे असाइन करवाना पड़ेगा। एक ही प्रोग्राम के अंदर आप उन 5 को इम्प्लीमेंट कर दो, एक ही फाइल में। आई चैट ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को LMS पे?